کوئی بھی بات کرنی ہے, کوئی ڈیگریڈ کرنا ہے, کسی کو ہرٹ کرنا ہے یا کسی کی تعریف کرنی, کچھ بھی, آپ اتنے میسیجز آتے ہیں تو ایک عام انسان کے لیے پاسبل نہیں. تو ایسی آسان لائف اللہ کسی دشمن کو بھی نہ دے. نکلتے ہیں اور یہاں ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ٹریفک, ارے نہیں کیا کرتے ہیں, دیکھ کر چلاتے نہیں ہیں. ایمبولینس کے اندر اتنا رش تھا, اوپر سے لوگوں کو اتنی جلدی کہ رش. السلام علیکم آئی ٹی فیملی, کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں سب خیر خیریت کے ساتھ ہوں گے. میں بالکل ٹھیک ہوں. جو بھی چینل کو سبسکرائب کر دیں, لائک کر دیں, شیئر کر دیں اور ساتھ ہی یہ بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آنے والی ولاگ کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل جائے, کوئی بھی ولاگ آپ مس مت کریں. اس چینل میں ملنے والے دن کے موسٹ ریئلسٹک ولاگ, جس میں کوئی فیکنس نہیں, کوئی ڈرامے باز نہیں, کوئی ایکٹنگ نہیں, ایک سنگل مطلب کہ ریئل لائف ملے گی, ریئل اسٹرگل ملے گی, ماں بیٹی کے ولاگ ملیں گے اور کچھ بھی نہیں. اور وہ جو لال والا بٹن ہے اس پہ بھوکمپ لے کے آؤ یا پھر بھوچال, مجھے نہیں پتا, بس کلک ہو جانا چاہیے. یہاں پہ جو ہم ناشتہ کرنے لگے ہیں, پراٹھا ساتھ میں پیاز کا ٹنڈا اور ہبا ہے نا, ہبا یوگرٹ. ہبا کھانا ہے بیٹا, گرانا نہیں ہے, گیم نہیں ہے. 2000 years later. یہ دیکھیں, یہ پارک ہے اور اس پارک میں فل پانی بھرا ہوا ہے. ڈبل چیزیں نظر آ رہی ہیں, فل پانی بھرا پڑا ہے, اتنا پانی ہے. پہ جا رہی ہوں ٹی سی ایس لیپٹ کوریو. یہاں پہ لیپٹ کوریو کے آفس آئی ہوں پارسل ریٹرن کریں گے. دراز کا پارسل لیپٹ کوریو میں ریٹرن ہوتا ہے. یہاں پہ روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے. یہاں پہ جو ہے نا ایکسیڈنٹ ہوا ہے, ایمبولینس آئی ہوئی ہے. رائٹ, ارے نہیں کیا کرتے ہیں, دیکھ کر چلاتے نہیں ہیں. اور یہاں ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ٹریفک بلاک ہے. ریٹرن جانے گئی نا, جیسے روڈ کراس کیے میں نے, ایکسیڈنٹ ہوا. اتنی ٹریفک بلاک, اتنا رش اس وقت ہوا ہی تھا. اس کے بعد ایمبولینس آئی ہے, ایمبولینس ابھی بھی روڈ پہ کھڑی ہوئی تھی. اور جو بندہ تھا نا جو بائک چلا تھا, اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی. جو عورت تھی ساتھ بیٹھی وہ بھی زخمی, اس کی بھی ٹانگیں شانگیں کچھ ہوا ہے. بہت ہی کوئی ظالم طریقے سے مار کے بھاگ گیا. ہاں, تو میں تو دیکھ کے ادھر حیران, کیونکہ بندے کی ٹانگ طرف رہا تھا ادھر لیٹا ایمبولینس کے اندر. اتنا رش تھا, اوپر سے لوگوں کو اتنی جلدی کہ رش, مین روڈ بلاک سروس لائن سے تاروں کا گچھا تھا. وہ بائک کے ٹائر میں وہ اگلے چلانا بائک, وہ تاروں, میں اتنی مشکل بچی, میرے بازو پہ لگی, ٹانگوں پہ لگی. میں کہا کیا ہو گیا, میں ایک دم سے دوسری طرف ہوئی, بالکل کچی جگہ پہ میں ہو گئی. میں اتنی مشکل بچ کی آئی ہوں. بس جلدی نکلنا ہے کہ اگر خود بھی مرنا, ٹائر میں پھنس گئی تار, آگے جا کے خود گر جائے منہ کے بل. خود کی ٹانگیں توڑنی, دوسرے کی توڑنی, بالکل صبر نام کی چیز نہیں. بہت ہی برا ایکسیڈنٹ. ابھی بھی کھڑی ہوئی ایمبولینس, ایمبولینس سے بھی کھڑی اندر, وہ فرسٹ ایڈ دے رہی ہے, اس کے بعد لے کر جائے گی. اور ایک دوسرے بیچاری چلا بھی نہیں جاتا تھا, اٹھا کے فٹ پاتھ پہ بٹھایا. بندہ زمین پہ لیٹا ہوا تو اس کی ٹانگ ٹوٹی, اس کو بٹھایا ادھر ایمبولینس میں. بہت برا ایکسیڈنٹ تھا. اللہ تعالیٰ بچائے, سب کو مان میں رکھے. آئی ہوں اور آ کے میں اب امی نے سبزی کاٹ کے رکھی ہے, پریشر لگاؤں پہلے آلو بینگن کو. اوون ہمارا چل نہیں رہا, کھانا گرم نہیں کر رہا, بہت زیادہ تنگی, بہت زیادہ مسئلہ بنا ہوا. گیس چلی جاتی ہے 10 بجے, اس کے بعد کچھ بھی بنانا ہو تو, کچھ گرم کرنا ہو تو کچھ نہیں ہوتا. اوون کو ٹھیک کرنے کے لیے دینے کے آنا ہے, انکل سے بات کر کے آئی ہوں, الیکٹریشین انکل, ان سے بات کر کے آئی ہوں, وہ اس کو ٹھیک کر دیں گے. اتنی دیر امی نے کہا کہ چلو جی, میں نے باہر نہیں اتارا کہ میں نے جانا ہے. امی نے کہا مجھ سے پریشر لگتا ہے, پریشر کی ربڑ چینج کرائی تو پریشر نے بہت زیادہ تنگ کیا ہوا ہے, تو میں پریشر لگا دوں اس کو فٹافٹ سے. پریشر لگا کے اوپر رکھ کے پھر نکلتی ہوں, اوون کو دے کر آتی ہوں اور پھر آؤں گی, پھر سکون آئے گا. میرا یو پی ایس بھی خراب ہوا ہے, اس کو بھی دینے پہلے اوون ایک چیز تو ٹھیک کرواؤں نا. اوون کو دے کر آتی ہوں. میں نے کہا کہ بے شک مجھے ایک دن بعد دے دینا, کہتے کل ملے گا. میں کہا بے شک ایک دن اور رکھ لینا, کیونکہ پیسے دینا بھی تو رکھ لینا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, پر اس کو صحیح کر کے دیں. ابھی جا کے اس کو دے کر آتی ہوں تاکہ نا یہ تو ٹھیک ہونے والا بنے نا. یہاں پہ میں نے یہ بینگن کو الٹا دیا پریشر کوکر میں. اب املی ڈالتی ہوں, املی نکالتی ہوں. یہ انڈوں والی ٹرے لی تھی, اتنے انڈے گھر میں ہوتے نہیں, مطلب فریج میں آ جاتے ہیں, تو اس وجہ سے ہی پھر میں نے اس کو اس طرح یوٹیلائز کیا. املی ڈالتی ہوں, آئل ڈالتی ہوں, نمک مرچ ڈالتی ہوں. نمک مرچ ہلدی بس, آلو بینگن کے اندر اور کچھ نہیں ڈالنا. فٹافٹ مسالے ڈال کے پریشر لگاتی ہوں. اور یہاں پہ پریشر لگا دیا ہے. اب اس جگہ کو خالی کرتے ہیں, نکالتے ہیں. یہ اوون نکال لیا میں نے یار, اب اٹھا کے لے کے جاؤ. میں نے باہر پرام نکالی, جلدی سے اس کو پرام میں رکھوں. ابھی تک میں نے ولاگ نہیں لگایا, ٹائم ہو گیا 8:30 بج گئے, ابھی تک ولاگ نہیں میرا لگا ہوا. یہ دے کر آتی ہوں, پھر آ کے ولاگ اپڈیٹ کرتی ہوں. ولاگ اپلوڈیڈ ہے, بس پبلک کرنے والا ہے, پر یہ پہلے دے کر آتی ہوں, کیونکہ ہبا مجھے نہیں جانے دیتی کہیں پہ. میں تو اکیلے اب وہ گئی ہے فاطمہ ماما کے گھر, میں نے کہا فٹافٹ یہ کام کر کے آؤں اپنا. ٹھیک ہے, سانس میرا پھول گیا, فٹافٹ نکلوں, دیکھ کر ابھی لوگوں کو لگتا ہے کہ میں جو ڈرامے کرتی ہوں, میری لائف بہت آسان ہے. تو ایسی آسان لائف اللہ کسی دشمن کو بھی نہ دے. نکلتے ہیں, جا کے اس کو دے کر آتے ہیں. یہاں پہ میں اوون کو لے کر آ گئی ہوں ٹھیک کرانے کے لیے. 2 hours later. بچہ سو گیا, نہلا کے میں نے اس کے کپڑے وغیرہ چینج کیے. یہ والوں میں کیا ہے,
माओ को एकदम से लगता है कि जूं ली तो नहीं है वो कुछ भी नहीं, शुक्र अल्लाह का। मैंने बहुत ज़्यादा काम किए हैं, थक गई हूँ। गैरेज धोया, गेट धोया, सफाइयाँ की सारी, और फिर जो है मैं पार्सल रिटर्न करने गई, जब हिबा गई है उधर एक्सीडेंट देखा एकदम से, बहुत ज़्यादा अजीब सा हुआ, और मैं भी मरते मरते बची क्योंकि मेरे बाजू पे तार, कोई केबल के तार गुच्छा था नीचे, कोई खंबे के पास पड़ा हुआ। बाइक वाला तेज़ी से गुजरा है, उसको आगे कट मार के जाएंगे जल्दी थी, वो उसके टायर में अड़ गया, वो बाइक पे आगे तक गया है, ठीक है। 2-3 तारें एक साथ थी, वो बार बार मुझे लगे, मैं कही ये क्या, मैं एकदम से मट्टी वाली साइड पर हो गई, अपने आप को बचाया मैंने, तो मेरे पाँव में अड़ गई, मैंने उधर गिर जाना था। इस तरह बुरे हालात थे। खैर अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह का नाम लेते हैं तो बच गए, निकल आए, और फिर घर आई हूँ। घर आके माइक्रोवेव वगैरह वो सही कराने के लिए दे कर आई हूँ, अल्लाह करे वो सब सही हो जाए, उसको लेकर आना है। और फिर चल फिर नहाई धोई, क्योंकि पसीने से बुरा हाल हो गया था, तो मैंने कहा चलो कपड़े चेंज करते हैं। और अल्लाह के नाम से याद आया कि मुझे कमेंट आते हैं कि जी मैं व्लॉग ना बनाऊं, मैं अल्लाह से रो लगाऊं, और जी अल्लाह मेरा साथ देगा, करम होगा। मैं आपको एक बात बता दूं, अल्लाह का नाम लेना हम तमाम मुसलमानों पर फ़र्ज़ है। हम हमारे दुनिया में आने का मकसद व्लॉग बनाना नहीं है, अल्लाह की इबादत है, दुनियादारी भी है। मेरे लिए मनोसलवा नहीं उतरेगा, व्लॉग मेरा सोर्स ऑफ इनकम है, ठीक है। इसको छोड़ के मैं जान माज बिछा के बैठ जाऊँ तो मेरे लिए मनोसलवा नहीं उतरना। हीले के साथ वसीला है, आप मेहनत करते हो, काम करते हो, तो भी आपको कोई सोर्स ऑफ इनकम बनता है। कोई काम ना करो, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, तो कुछ भी नहीं होता। मैं लोगों के रहमो करम पे खुद को ही, अपनी बच्ची को नहीं छोड़ सकती। मुझे मेहनत करनी है अपनी बेटी के लिए, तो वो मैं कर रही हूँ। और जहाँ तक रही बात अल्लाह से लो लगाने की, अल्लाह के साथ कनेक्शन बनाने की, तो अल्हम्दुलिल्लाह नमाज भी पढ़ते हैं, अलग से बातें भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट मैं उसका व्लॉग शूट नहीं करती, कभी सिंगल क्लिप भी नहीं दिया। उसकी रीज़न है, जो लोग शूट करते हैं उनको भी आप लोग जाके कमेंट करते हैं, लोग कमेंट करते हैं कि शो ऑफ कर रहा है। अल्लाह का और बंदे का मामला है, इसमें वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत है। और जो मुझ जैसे वीडियो नहीं बनाते उसको कहा जाता है कि नमाज भी पढ़ लिया करो, अल्लाह के साथ लो लगाओ, और ऑल दैट स्टफ। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ती हूँ, मेरे पेरेंट्स पढ़ते हैं, तो मैंने अपनी कब्र में जाना है। तो कोई भी मतलब कुछ भी बोल जाते हो आप आके, अगर आप किसी की तकलीफ को समझ नहीं सकते ना, तो जब वो एक मैंने जगह बात पढ़ी थी कि उस वक्त तनकीद मत करो जब किसी को आपके साथ की ज़रूरत हो, ठीक है। तनकीद करने के लिए बहुत वक्त है, ठीक है, तनकीद की जा सकती है। एक बंदा पहले डिप्रेशन में हो, पहले टेंशन में हो, और उसको आके आपको लगता है कि आप इन कमेंट करके निकल जाएंगे तो इजीली मैं इग्नोर कर दूंगी, ऐसा नहीं होता। आपका कमेंट आप जैसे टाइप करके निकल जाते हो, अगले इंसान को कितना हर्ट करता है वो जानता है, अल्लाह जानता है, ठीक है। मेरा नमाज पढ़ना, मेरी इबादत करना, मेरा इस्तग़फ़ार करना मेरा और अल्लाह का मामला है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं करती हूँ, ठीक है। मुझे इसको किसी को गवाही देने की नहीं, मैं कह रही किसी को गवाही देने की मुझे ज़रूरत भी नहीं है, और ना ही मुझे शो ऑफ करने की ज़रूरत है। मैं चाहूँ मैं व्लॉग बना लूँ, जायनमाज़ बिछाया है, नमाज़ पढ़ रही हूँ, ये फजर की नमाज़ पढ़ रही हूँ, तहज्जुद की पढ़ रही हूँ, फजर पढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह मैं सोती हूँ, क्योंकि मैं रात को काम करती हूँ, बको सोने के बाद फजर पढ़ के सोती हूँ। मैं बताऊँगी मैं तहज्जुद की नमाज़ पढ़ रही हूँ, मैं यहाँ पे फजर की नमाज़ पढ़ रही हूँ, ये सब कुछ करूँ मैं, तो फिर आपको लगेगा नमाज़ पढ़ रही हूँ, फिर आप में से कुछ लोग उठ के कहेंगे जी मैं शो ऑफ कर रही हूँ, ये मेरा अल्लाह का मामला है, इसमें रिकॉर्ड करने की क्या ज़रूरत है। तो मुझे पर्सनली ये लगता है कि मेरा और अल्लाह का मामला है, इसमें कोई दूसरा तीसरा नहीं होता, तो मैं इस वजह से शूट नहीं करती। तो जहाँ तक की बात दुनिया के सामने रोने की, तो अगर आप व्लॉग पूरा देखें तो आपको इस बात की समझ आए कि वो रोना नहीं था, ठीक है। वो एक मैं इतने सेंसिटिव पर्सन हूँ कि जब मैं कोई बात शेयर करती हूँ ना, तो मैं कोई बात करती हूँ, मैं विदाउट एनी फीलिंग कोई व्लॉग शूट नहीं करती। कोई बात मुझे ड्रामेबाजी नहीं होती, मुझसे एक्टिंग नहीं होती, ठीक है। मेरा मूड अच्छा है तो अच्छा है, मेरा मूड नहीं अच्छा तो नहीं अच्छा। मैं सैड हूँ तो सैड हूँ, मैं खुश हूँ तो मैं खुश हूँ, मैं इमोशनली अंदर से टूटी हुई हूँ तो मैं हूँ। अब कुछ बातें मुझे बहुत हर्ट करती हैं, तो
लाइक कोई भी बात है, वो बात इतनी इस कदर मुझे हर्ट करती है, जब वो बात शेयर मैं किसी से शेयर नहीं करती, ठीक है। इस टाइम मुझे लग रहा है मैं किसी से शेयर नहीं कर रही, बट मैं अपनी फैमिली, यूट्यूब फैमिली से शेयर कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैं कमरे में अकेली हूँ, मेरी बेटी सो रही है, मैं कैमरा उठा के बात कर रही हूँ, किसी के सामने बैठ के मैं उससे शेयर नहीं कर रही। मैं अपनी अम्मी से शेयर नहीं कर सकती क्योंकि मुझे पता है कि मैं वीक फील होंगी। मैं शेयर करूंगी, मुझे पता है, मेरी नेचर का मुझे पता है, मैं बात करूंगी। जब मैं उस चीज़ को फील करती हूँ, मैं शेयर करती हूँ, वो बात करते हुए मैं रो जाती हूँ, ठीक है। तो वही सीन है कि बात करते हुए रोना और बैठ के सिर्फ वैसे ही रोना डिफरेंट होता है। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, ठीक है। हर इंसान की ज़िंदगी में दुख होते हैं, मैं बिल्कुल इस चीज़ को अंडरस्टैंड करती हूँ, सबकी ज़िंदगी में दुख होते हैं, किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं होती, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने अगर चुना है तो कुछ देख कर ही चुना है। इस काबिल थे, इतने स्ट्रांग थे तब भी। और आजकल के इस दौर में और पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे सिर्फ मर्दों की हुकूमत है, लाइक मर्दों का माशरा है, वहाँ पे अकेली औरत का सर्वाइव करना कितना मुश्किल है ये आप लोग समझ सकते होंगे, ठीक है। और औरत जहाँ पे कमाने के लिए निकलती ना, हलाल तरीके से कमाने के लिए निकलती है, जॉब करती, कहीं भी औरत अपने घर के बाहर सेफ नहीं है, ठीक है। मैं पहले भी जॉब कर चुकी हूँ, मेरे पास एक्सपीरियंस से बात करती हूँ मैं कि औरत सेफ नहीं है। अभी रिसेंटली आज की वीडियो में देख रही हूँ कि एक ऑनलाइन ड्राइवर एक राइड में आई है, और राइड वाले ने जी, जब वो राइड एंड हुई है, वो बंदा उस औरतों के पीछे घर घुसा है और बाद में जी जाकर रेप करके निकल गया। मतलब ये हमारे मुल्क में सिक्योरिटी की, औरत घर के बाहर सेफ नहीं है। तो मैं अपने साथ जो हुआ सारे वाकयात के बाद मैं इस कदर डर गई, क्योंकि मैं अपनी जो डीप बातें वो शेयर नहीं कर सकती, ठीक है। मैं उसके बाद इस कदर डर गई हुई हूँ कि मुझे दुनिया पे भरोसा नहीं है, मैं बाहर सिक्योर फील नहीं करती, और अपनी बेटी के लिए भी नहीं, खुद के लिए भी नहीं। तो मैं इस वजह से जॉब नहीं कर सकती, ठीक है। एक तो इतने घंटे की बात है, दूसरी बात ये मैं सिक्योर, क्योंकि जब औरत के ऊपर एक डिवोर्स का टैग लगता है ना, तो उसके पास सब अवेलेबल का, लोगों को डिवोर्स का टैग नजर नहीं आता, वो लोगों को अवेलेबल का टैग नजर आता है, ठीक है। और उस चीज़ को मैं बहुत अच्छी तरह रियलाइज कर चुकी हूँ, ठीक है। सोशल मीडिया हैंडल कर रही हूँ, आसान नहीं है, ठीक है। आप लोग आते हैं कमेंट करके निकल जाते हो, आप लोग आते हो डीएम करके निकल जाते हो। कभी कभी तो मेरे ज़हन में ख्याल आता है कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, इन सब पे मैसेज के ऑप्शन को ख़त्म करके ना कोई बैंक अकाउंट ऐड करने की ऑप्शन होनी चाहिए, ताकि कुछ तो फ़ायदा हो ना। मैसेज करके बातें करके निकल जाते हैं। मतलब कोई भी बात करनी है, कोई डिग्रेड करना है, किसी को हर्ट करना है, या किसी की तारीफ करनी, कुछ भी, आप इतने मैसेजेस आते हैं, तो एक आम इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है इतना सब कुछ हैंडल करना। मैं बहुत सी चीज़ों को एट अ टाइम फेस कर रही होती हूँ, मैं बहुत सी चीज़ों से गुजर रही होती हूँ। तो आई एम नॉट अ नॉर्मल पर्सन। क्या आप कहेंगे हाँ जी मैं एक आम सी औरत हूँ और मेरी लाइफ ऐसी होगी? ऐसा नहीं है, ठीक है। मैं अपने घर का मर्द भी हूँ, मैंने कमाना भी खुद है, मैंने बाहर भी जाना खुद है, मैंने कोई भी काम है, इवन के ये छोटे छोटे काम जो लोगों के घरों में मर्द करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिशियन के ये वो सारे, ये सब मैं खुद करती हूँ, ठीक है। मेरी लाइफ आसान नहीं है, और जिनको लगता है आसान है तो मैं यही कहती हूँ कि अल्लाह ताला कभी किसी दुश्मन को भी ऐसी लाइफ ना दिखाए। खैर, मैं अपना व्लॉग यहाँ पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि मेरी जो बात है वो क्लियर हो गई होगी कि मैं जानती हूँ, मेरा अल्लाह जानता है कि जब मैं प्रेग्नेंट थी तब मैं सही रात जाए नमाज पे बैठती थी, सही रात तहज्जुद पढ़नी, नवाफिल अदा करने, कुरान पढ़ना, नमाज पढ़नी फजर। फिर मैंने कहीं थोड़ी सी आंख लगानी है, लाइक मुझे इतनी टेंशन थी, मैं चाहती थी कि मेरा घर बसा रहे। सब कहते थे बच्चा होगा सब कुछ ठीक हो जाएगा, इतना कुछ किया। और आप लोगों को लगता है कि नहीं जी अगला बंदा तो अल्लाह से के साथ कनेक्टेड ही नहीं है, ये सांस ले रहे हैं तो अल्लाह दे रहा है। तो मुझे तो किसी इंसान से बात करने का मेरा दिल ही नहीं करता, मैं तो अपनी हर बात अल्लाह के सपुर्द कर देती हूँ। और लोग आके जैसे करते हैं कि नहीं जी मैं कुछ भी नहीं करती, मैं सब कुछ छोड़ के बैठ जाती हूँ तो मेरे लिए मनोसल बहुत रहेगा। तो ऐसा नहीं होता। मैंने ज़िंदगी की हकीकत को बहुत जल्दी तस्लीम कर लिया हुआ है, तो मुझे पता है मेरे लिए क्या ठीक है क्या नहीं, मेरी बेटी के लिए क्या ठीक है क्या नहीं, और मेहनत करना मेरा काम है, फल देना अल्लाह का काम है। तो अपना व्लॉग यहाँ पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा लाइक कर देंगे, सेशन कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, चैनल पे न्यू सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल इंशाल्लाह न्यू व्लॉग के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़।